Now also you can see the presentation. दिखाई दे रहा है? Can you see the presentation? Okay. Previously we lectured resolution of forces. I am continuing now. Little bit some error. कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था इन शॉर्ट, तो उन लोग के लिए वापस थोड़ा बहुत रफली वापस एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ with other some effect. There is a particle over here O. दिखाई दे? Can you see the O? पार्टिकल यहाँ पे O दिखाई दे रहा है. ओके. It having the axis x and y axis. There is a force on the particle O having the value of F. Force is acting on particle O having the value of F. If I want to resolve this force in M and N plane, which plane? In M and N plane. Instead of F, I want to return this force in plane F, M and in plane N. मेरे को ये फोर्स को M में रखना है या फिर N में रखना है, रिजोल्व करना है. देन वी हैव टू यूजिंग बाय दिस फॉर्मूला ओनली, which makes an alpha, which the plane which makes an M makes an angle alpha and beta. Then force will be called as P and Q. Instead of in plane OM, the force is called as P and Q. By this law of triangle or superposition, I am replacing this OB over here AC. I have given her name A, B, C, P, Q तक दिया था. Then after I given the name A, B and C at the end point of the force. So you can easily write that, recognize that here. A, B and BC. Okay. This beta will also as same beta as same. कैसे? Over here. ये सबको पता है, अगर ये एंगल बीटा है then this some opposite angle also will become also बीटा. सेम मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं. ये O और N, ये A और C लाइन, ये O और N और ये A और C लाइन. यहाँ पे मैंने बीटा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, तो अल्टीमेटली दिस आल्सो बिकम बीटा, अल्टरनेट एंगल्स. ये आप लोगों ने 8, 9, 10 में पढ़ा होगा. क्लियर? ये ऑलरेडी हो चुका है प्रीवियस लेक्चर में. दिस ऑलरेडी बीन टेकन. This angle will be the alpha plus beta, total alpha plus beta. So this angle is also an alpha plus beta. So this angle will be the 180 minus alpha plus beta. Now I am considering the only triangle OAC. Which triangle? OAC, this triangle only. In that I am applying the sine rule. Means OA divided by beta sine beta, AC divided by sine alpha, and OA divided by 180 minus sine alpha plus beta, or beta plus alpha. So instead of side, I have written here force PQF. P force, Q force, and F force. So components of P, and what is the value of P? Over here, F divided by sine alpha plus beta. So here 180 will be neglected, as you know that sine 180 minus alpha plus beta will become sine alpha plus beta. Same value हो जाता है, 180 निकल जाता है. ये पता है ना? हाँ, गुड. नहीं, डिप्लोमा वालों को ये पता नहीं रहता, इसलिए मैं पूछ लिया. किसी को यहाँ पे भी पता नहीं होगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा करके. ओके. F डिवाइड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा इनटू साइन बीटा. सेम कंपोनेंट Q भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेम F डिवाइड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा इनटू साइन अल्फा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके. नाउ the force is to be resolved in two planes which is perpendicular to each other, then the component of force on each plane as shown. यानी आप लोगों को फोर्स सेम पार्टिकल्स फोर्स है, एक्स वाई डायरेक्शन फोर्स F है. नाउ
m on n will be the x and y. पहले कुछ एंगल में था, अभी नाउ x और y प्लेन पे फाइंड आउट करना. Here the particle O, force F. Now the plane M and N will be correspond to the x and y. यानी मेन आप लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है x डायरेक्शन कितना है, y डायरेक्शन में करना है कितना आएगा उसका रिजोल्यूशन. व्हाट विल द फोर्स ऑफ F इन x डायरेक्शन इन y डायरेक्शन. प्रीवियसली हम लोगों ने एट सम एंगल फाइंड आउट किया था. अभी जो फाइंड आउट करना है एट सम एंगल विच इज परपेंडिकुलर टू द ईच अदर. सेम अल्फा प्लस बीटा, बीटा एंड अल्फा कंसिडर रखा. ए बी पी फोर्स ट्राइंगल ए बी सी ए ओ सी. सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे एक चेंज सेम है. हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन बीटा. कंपोनेंट्स भी जैसे हम लोगों ने प्रीवियस प्रेजेंटेशन में देखा था, अल्फा एफ डिवाइड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा इनटू साइन अल्फा आता है. ओके, नाउ यहाँ पे यू नो डेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. as we in this case alpha plus beta equals to 90 डिग्री. सो यहाँ पे sin 90, यहाँ पे मैंने sin बीटा को इन टर्म्स ऑफ अल्फा रखा. मेरे को सिर्फ अल्फा की वैल्यू पता होती है, बीटा की वैल्यू पता नहीं रहती, तो मैंने यहाँ 90 माइनस अल्फा लिख दिया. क्लियर? हेलो, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसे ही यस सर बोल रहे हैं? गुड. तो यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू 1 रहती है, यहाँ पे साइन के जगह पे कॉस हो जाएगा. कॉस अल्फा. क्लियर? नाइन्टी होता तो कॉस हो जाता, 180 होता तो एज इट इज साइन की वैल्यू हो जाती. क्लियर? ओके, गुड. that means f into cos theta. What will be the component of p? f into cos theta cos alpha. जो भी यहाँ पे थीटा है, अल्फा बीटा जो भी रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, जो भी फोर्स उसका विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल दैट इज इक्वल टू f into cos theta. सेम अगर q कंपोनेंट देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ साइन ये 90 हो जाएगा. दैट मीन्स f अपन साइन अल्फा, यानी वर्टिकल के लिए साइन है, हॉरिजॉन्टल के लिए कॉस है. क्लियर हो गया? if the angle is horizontally measured, अगर एंगल आपका हॉरिजॉन्टली मेजर किया है तो वर्टिकल विल बी साइन, हॉरिजॉन्टल विल बी द कॉस. क्लियर नाउ? ओके, अभी एक पेन, सिंपल कैलकुलेटर और पेन लेके बैठना पड़ेगा. एक प्रॉब्लम देने वाला हूँ. ये सपोज पॉइंट ओ थोड़ा बहुत साइड पे होगा, एक्चुअली यहाँ पे पॉइंट ओ है, एक्स वाई ड्रॉ किया है, एक फोर्स आया है F1. क्लियर? अभी इसका रिजोल्यूशन करना है x और y में एट सम एंगल थीटा 1. यहाँ पे मैंने वैल्यू दी थी F1 इक्वल्स टू 250, थीटा 1 इक्वल्स टू 30 डिग्री. ओके, तो ये फोर्स हम लोग को निकले, कंपोनेंट्स निकालेंगे Fx1 Fxy, Fx1 F1y, F1x F1y. प्रीवियसली समझ में आया तो आप ये इजीली कैलकुलेट कर सकोगे. x डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल के लिए कितना आएगा? हॉरिजॉन्टल के लिए f की जगह पे 250 आएगा, थीटा की जगह पे 30 आएगा. सो f 250 इंटू कॉस 30. क्लियर?
ओके, लेकिन बाकी सबको हाँ बोलो। ओके, और किसी का अलग आंसर आया है? बाकी सबका आंसर आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड, आंसर है ये रहा 216.50। ये आंसर किन लोग का नहीं आया अब तक? नेक्स्ट, अभी f1y की वैल्यू क्या रहेगी? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? वर्टिकल के लिए क्या फॉर्मूला है? वर्टिकल के लिए एक मिनट, वर्टिकल के लिए फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फॉर्मूला? यस, साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 30 है, 30 डिग्री। 250 इंटू साइन 30, आंसर विल बी 125। ओके, किलो न्यूटन, गुड। भाई जिसको नहीं आ रहा है प्लीज बीच में बोलना, ये तो जिन लोग का आता है वो तो बोलते रहेंगे। जिन लोग का आंसर अब तक नहीं है प्लीज इन्फॉर्म मी। मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जिन लोग को आता है उन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर? सुनाई दे रहा है ना सबको? ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट, ये F2 है विद एन एंगल 25। Now what is the F2x? What is the value of F2x and F2y? हाँ, मिक्स है क्यों? हाँ, ओके, आगे का मिस हो गया, आगे का मिस हो गया उसको। ओके, वेट 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 सागर, वेट 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 वेट, एक मिनट, कोई आया है अंदर, एंट्री को मांग रहा है। ओके, किसका मिस हो गया था, वापस से बोलना। ओके, ध्रुविक। ओके, मैं वापस से बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत बैक जा रहा हूँ, जिनका हो गया वेल एंड गुड, मैं वापस से थोड़ा बहुत बैक जा रहा हूँ। यहाँ तक तो प्रीवियस लेक्चर में पता था तेरे को, P इक्वल्स टू एफ डिवाइड बाई साइन बीटा प्लस अल्फा इंटू साइन बीटा, ये पता है कि नहीं? प्रीवियस लेक्चर में यही यहाँ तक को हो गया था। ये m ऑन n प्लेन पे निकाला था हम लोग ने। ओके, ये रहा फॉर्मूला, यहाँ तक तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने दिखाया था, मेरे को याद है वहां तक तो भी था इजीली। एफ डिवाइड बाई साइन बीटा प्लस अल्फा इंटू साइन बीटा, क्यू इक्वल्स टू एफ डिवाइड बाई साइन बीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, ये कब याद रखना पड़ेगा? जब कोई एंगल पे है चाहिए हम लोग को कंपोनेंट, तब ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। दो प्लेन के कंपोनेंट अगर वो परपेंडिकुलर ईच अदर रहेगा, if the plane is perpendicular to each other, then the formula will be changed। तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा इस तरह से, हियर यू नो परपेंडिकुलर रहेगा तो साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू रखी मैंने सिर्फ यहाँ पे, साइन 90 इंटू माइनस अल्फा, बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा रख दिया मैं, ये 90, ये वैल्यू इक्वल्स टू बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मैंने अल्फा रखा एक्चुअली। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा रहेगा, ये एंगल 90 माइनस अल्फा रहेगा, अल्टीमेटली ये माइनस 90 माइनस अल्फा, दैट विल बिकम कॉस अल्फा। सो एफ डिवाइड बाय एफ साइन 90 की वैल्यू 1 रहती है, एफ इंटू कॉस अल्फा। सेम वे अगर क्यू का निकालो तो ऑलरेडी साइन अल्फा है, साइन 90 की वैल्यू 1 रहती है, एफ इंटू साइन अल्फा रहेगा। वर्टिकल के लिए साइन, हॉरिजॉन्टल के लिए कॉस, अगर एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल रहेगा तो।
If this angle is with respect to horizontal, then it will become sine alpha, vertical, and horizontal will be the cos alpha. Okay, clear Dhruvik? ओके अगर एंगल हॉरिजॉन्टल से रहेगा देन ओनली, अगर विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल रहेगा तो साइन की जगह पे कॉस, कॉस की जगह पे साइन आएगा। वो प्रॉब्लम में देखते हैं हम लोग। ओके, ये मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम दिया था F1 का कंपोनेंट एक्स हॉरिजॉन्टल में फाइंड आउट करना, वर्टिकल जिसका एंगल दिया है थीटा 1, जो मैंने यहाँ पे लिखा है F1 की वैल्यू 250, थीटा की वैल्यू 30। Fx cos फर्स्ट का हम लोग ने बोला था हॉरिजॉन्टल के लिए cos, तो उसकी वैल्यू 216 है। वर्टिकल के लिए साइन, इसका वैल्यू साइन हो जाएगा, कॉस की जगह साइन रहेगा। सेम वे अभी F2 आया एट एंड सम एंगल, इसकी वैल्यू F2 है। अभी ये दो फाइंड आउट करने, अभी यहाँ तक पहुंचा हूँ। क्लियर अभी यहाँ तक का ध्रुविक? क्लियर? और टेंशन मत लो जो लोग एब्सेंट रहे होंगे, ये फुल्ली वीडियो मैं वापस अपलोड करूंगा गूगल क्लासरूम में, रिकॉर्ड हो रहा है, आई एम रिकॉर्डिंग दिस। इसीलिए वो वापस से अगर किसी को सुनाई नहीं दिया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, देन मेरा सिर्फ वॉल्यूम आएगा, आप लोगों का वॉल्यूम उसके अंदर नहीं आएगा। मेरा वॉल्यूम जो भी रहेगा उसके आप प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या आप बोल रही थी, किसी का कुछ डाउट। ये पूरा वॉल्यूम सॉरी, दिस वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन द गूगल क्लासरूम अगर इफ यू हैव मिस समथिंग ऐसे। ओके yes, only 991 will be not allowed. 991 LC will not allowed in the class. Other class scientific LC will allow. Okay. Higher version of 991 and 991 calci will not allow. Normal calci calculator and scientific calculator other than 991 will be allowable. Okay. Now F2x, what will the formula? 100 into cos 25, instead of 30 it will become 25, instead of 100 it will become 100. Now here is something is that this force is going that side we consider as plus, but this force is going in other direction, it will become considered as minus. Clear? Yes, because it's going in this direction, left side direction, so it will be considered as if you do not want to write this minus, then calculate this angle from 0 to this angle, not instead of this side. It will you automatically will come in the minus sign. If you want to see, then see that 25 minus 180, how much will become? 180 minus 25, it will become 155. Calculate 100 into cos कितना आया था? 155. 100 into cos 155. It automatically give the same value but with a minus sign. Clear? It means we are considering this sign. The force which is going right side is positive, force which is going left side it's negative. Clear? Okay, now F2 Fy, here I have written cos, instead of cos here sine will be there. Answer is right, 42.26. Here sine will be there, no cos. By mistake I have written this cos, I have to change this sign. The answer will be 42.26 kilonewton. What will the value kilonewton? How we can, instead here if it's Newton, then here also will come Newton. जो भी यहाँ पे फोर्स की वैल्यू दी जाती, यूनिट दिया है, सेम फोर्स विल बी द हियर. Clear now how to resolve into two parts, how to combine these two force into single force.
ये दोनों सीख लिया आप लोगों ने। फर्स्ट हम लोग ने सीखा था कि दो फोर्स को सिंगल फोर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, दैट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स। यस, 180 माइनस के, इसीलिए ये एंगल हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एंगल इस साइड जा रहा है तो ये थीटा विल बिकम दिस थीटा, यहां से लेके यहां तक, then only it will become minus. Minus means it is not wrong, it indicates that the chosen direction will become from other side. I have chosen this as this side will be the plus, then this sign will be the negative, obviously. Okay, if you choose this sign is positive, then this angle will consider, we have to consider from this to this, so this sign will be the negative, nothing else. Clear? Okay, कुछ आगे का करना बाकी था एक्चुअली, इसलिए ये थोड़ा थोड़ा डिलीट कर रहा हूँ एक्चुअली। प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं हुआ था एक्चुअली, बना दिया था लेकिन इफेक्ट देना बाकी था। डायरेक्टली आंसर आपको लोगों को मिल जाएगा कैसे क्या था ना। थर्ड फोर्स F3, F3 angle is over here is with respect to vertical, with respect to vertical. Okay, F3 350 into theta, theta will come 40 degree। और एक चीज, ये गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है आपको, ये प्रॉब्लम, ये चारों फोर्स। एक वीक का टाइम देता हूँ अपना, एक ही पेज में ऐसे मैं लिखा वैसे लिख दिया कि तो अभी चलेगा, लेकिन एक ही पेज पे अपना एनरोलमेंट नंबर ऊपर होना चाहिए, डेट जिस दिन भी लिखा है उस दिन का डेट ऊपर होना चाहिए, और फोटो खींचते समय प्लीज ब्लू पेन द ब्लू पेन, ब्लैक पेन द ब्लैक पेन, ब्लैक पेन वाला हो सके तो अवॉइड करना, हो सके तो ब्लू पेन से लिखना, और कलर मत चेंज करना ड्यूरिंग अपलोडेशन। ओके, ये दोनों की वैल्यू, ये चारों की वैल्यू मैं दिखा दूंगा, लेकिन आपको लिखकर अपलोड करना है। ओके ओके, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कॉपिंग दिस वैल्यू, आई एम चेंजिंग दिस फोर्स। आपको फोर्स चेंज करना है, जो भी F1 का फोर्स था वो F3 का लेना है, एंगल सेम रखना है, सिर्फ फोर्स की वैल्यू चेंज करनी है। F1 का F3 में, F3 का F1 में, F2 का F4 में, F2 का F4 में लेना है वैल्यू। यानी यहाँ पे F1 की वैल्यू क्या है 250, तो आपके केस के अंदर 250 हो जाएगी, और F1 की वैल्यू 350 हो जाएगी। यहाँ पे F1 F2 की वैल्यू 100 है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम के अंदर 100 हो जाएगा, और F4 की वैल्यू 300। अगर किसी को ये प्रॉब्लम समझ में नहीं है तो वापस से मैं अपलोड कर दूंगा एज अ सिंगल पेज असाइनमेंट। ओके, अभी फिलहाल ये कैसे सॉल्व करना है वो दिखा देता हूँ। अगर विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल रहा तो if angle with respect to vertical, we can change the angle directly by 90 minus 90, then we can get with respect to horizontal, or we can change, instead of cos we have to write sin, there is no big change। अगर सपोज ये फोर्स 350 एंगल 40 है, यानी ये एंगल 40 है, आई हैव रिटर्न दिस 350 90 माइनस 40, कॉस आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए तो कॉस 90 माइनस 40, और लिखा है ये आइदर दिस और दिस, यहाँ पे मैंने एक्चुअली डिलीट कर दिया, आई हैव डिलीटेड दिस। ओके, और
350 into sin 40 instead of cos you have to write sin 40. प्रीवियसली हम लोग ने क्या लिखा था 100 into sin 40 जो भी एंगल था वो डायरेक्टली हियर वी हैव टू चेंज दिस साइन cos ही लिखना है तो फिर 90 minus 40 लिखना है cos की जगह पे sin अगर जो एंगल है वही लिखना है तो 40 इन दोनों में से कोई भी एक ही लिखना है वो आप लोगों के पे डिपेंड करेगा जिनको इजीली समझ में आता है जिनको इजीली समझ में ना तो वो जो हॉरिजॉन्टल की cos तो यहाँ पे 90 minus 40 हो जाएगा और जिन लोग को समझ में आया ये ऑपोजिट एंग साइन हो जाएगा साइन हो जाता है एडजेसेंट रहेगा तो वो cos ही रहेगा नीचे cos ही रहेगा ये राइट पोजीशन समझ में आया ये इंपॉर्टेंट है कहाँ पे cos लिखना है कहाँ पे साइन लिखना है वो इंपॉर्टेंट और कौन सा एंगल लेना है इसलिए मैंने थोड़ा बहुत सिर्फ वैल्यू चेंज करके आपको लिखने को बोला अगर विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल रहा तो हॉरिजॉन्टल के लिए साइन हो जाएगा या फिर cos ही लिखना है तो 90 माइनस जो भी एंगल दिया है वो लिखना है क्लियर दोनों में से कोई भी एक ही लिखना है दोनों लिखने की जरूरत नहीं मैंने दोनों एग्जांपल दिए ओके क्लियर सेम वे यहाँ पे 45 दिया है 300 cos 45 एंगल कितना दिया है 45 तो यहाँ पे cos 45 जो भी लिखो sin 45 cos 45 की वैल्यू सेम ही रहेगी वो एक प्रॉब्लम सिर्फ दिया है sin 45 की वैल्यू या cos 45 की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम रहेगी तो आप कोई भी ले सकते हो अल्टीमेटली सेम ही वैल्यू यहाँ की और यहाँ की वैल्यू सेम मिलेगी 45 एंगल रहेगा क्लियर ओके अभी इसमें किसी को कुछ डाउट है प्रॉब्लम है ओके लास्ट वाला ओके ये एंगल मैंने ड्रॉ किया F3 आया F3 की वैल्यू 350 एट एन एंगल ऑफ 40 एट एन एंगल ऑफ 40 ओके विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल मैंने क्या बोला था अगर आपका फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल है तब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी द cos लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एंगल कितना रहेगा ये 90 माइनस थीटा 3 तो मैंने लिखा है 90 माइनस 40 थीटा 3 की वैल्यू 40 है तो 90 माइनस 40 यानी दिस कंपोनेंट विल बी बिकम 350 into cos 90 minus 40 क्लियर क्लियर अभी कि अभी भी नहीं समझ में आया ओके जिनको समझ में नहीं वापस से दूसरी अलग से एक्सप्लेन करता हूँ प्रीवियस वाला समझ में आया था जैसे ये एक एंगल था ये fx निकाला था हम लोग ने उसका कंपोनेंट क्या आया था 250 into 630 आया था बराबर इसका सेम वे अभी इसका निकालना है तो हम लोग को एंगल भी हॉरिजॉन्टल से मेजर करना है लेकिन एंगल क्या है यहाँ पे दिया है हम लोग को विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल हम लोग हॉरिजॉन्टल से निकालने के लिए 90 माइनस 40 कर दिया क्लियर अभी 90 माइनस 40 हो गया तो क्या बोल देंगे हम लोग साइन भी बोल सकते उसको हाँ साइन 40 तो इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो एनी वन यू कैन यूज दिस आइदर साइन और कॉस अगर कॉस यूज करना है तो 90 माइनस 40 करना पड़ेगा क्लियर नाउ ओके अभी जिन लोग को प्रॉब्लम रहता है ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है वो सब याद नहीं रहता है तो उसके लिए सिंपल एग्जांपल मैं बताऊं जब भी आप फाइंड आउट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल ही एंगल लेना है जिनको समझ में नहीं आता है रफली वो भी कुछ एक दो डाउट रहेगा उसके लिए बोल रहा हूँ जो आप लोगों को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना कोई भी एंगल से दिया है एंगल मस्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल होना चाहिए देन द हॉरिजॉन्टल विल बी द cos वर्टिकल विल बी द sin सिंपल जो भी हॉरिजॉन्टल रहेगा उसको cos से मल्टीप्लाई करना जो भी वर्टिकल रहेगा उसको sin से मल्टीप्लाई लेकिन एंगल आपको कहां से फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू ओनली हॉरिजॉन्टल होना चाहिए नॉट विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल ओके
तो आप ये तो निकाल सकोगे इजीली 90 माइनस जो भी एंगल रहेगा वो माइनस कर देना बस, और कुछ नहीं, तो अल्टीमेटली वो विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। हाँ, सभी मेजरमेंट में हॉरिजॉन्टल ही लेना, तभी हॉरिजॉन्टल कॉस्ट रहेगा, वर्टिकल साइन रहेगा। टेक्स्ट बुक में आप देखने जाओगे, अगर कहीं दूसरे टेक्स्ट बुक या कोई भी कहाँ पे भी देखोगे तो कई जगह पे वर्टिकल वाला भी कॉस्ट दिया हुआ है, लेकिन वहां पे एंगल भी वर्टिकल से मेजर किया होगा, तभी वो वर्टिकल वाला कॉस्ट होगा। वो नोट याद रखना। ओके, अगर वर्टिकल फोर्स कॉस्ट में मल्टीप्लाई किया होगा, वर्टिकल कंपोनेंट कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया होगा, देन एंगल आल्सो विल बी मल्टीप्लाई विद द हॉरिजॉन्टल विद वर्टिकल एंगल लिया होगा हम लोग ने, तभी वो वर्टिकल वाला कॉस्ट होगा। ओके, क्लियर? ओके गुड। तभी ये एक असाइनमेंट दिया हूँ, यहाँ पे वैल्यू क्या चेंज करनी है, F2 के जगह पे F4 लिखना है, F1 की जगह पे F3, F3 की जगह पे F1, F2 4 की जगह पे F2 वैल्यू लिखनी है। ओके, तो ये गूगल क्लासरूम में आपको सिंपल एक पेज का असाइनमेंट दिया हूँ मैंने। क्लियर? अभी भी पूछ रहा हूँ, किसी को डाउट है तो 2 बजे आ जाना, 10 मिनट के लिए मैं क्लासेस दूंगा इसके रिगार्डिंग। ओके, इंस्टेड ऑफ F1 वैल्यू 250 की जगह पे हम लोग को 350 लिखनी है, और F2 की वैल्यू 100 की जगह पे 300 लिखना है। F3 की वैल्यू 350 की जगह पे 250 लिखना है। एंगल सेम रखना है, एंगल में नो चेंज। और F4 की वैल्यू इंस्टेड ऑफ 300 यू हैव टू राइट 100। क्लियर? हाँ हाँ, बोलो बोलो। या 250 F1 will become 250, sorry F3 will become 250। चैट बॉक्स में लिख के देता हूँ, F1 equals to 350, F2 will become 300, F3 will become 250, F4 will become 100। ओके, चैट बॉक्स में दिख नहीं दे रहा, चैट बॉक्स में नहीं दिखाई दे रहा है, मैंने टाइप किया वो आया ना अभी। ओके, एंगल θ1 θ2 θ3 θ4 ही लिखना है। ओके, यहाँ पे सिर्फ ये F1 F2 F3 F4 ड्रॉ करना है, ये F1Y F1X वो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ड्रॉ किया था। आप लोगों को सिर्फ F1 ड्रॉ करना है, F3 ड्रॉ करना है, F4 ड्रॉ करना है, F2 ड्रॉ करना है, लेकिन यहाँ पे जो माइनस साइन था वो माइनस साइन रखना है। यहाँ पे दोनों की वैल्यू F3 और F4 की वैल्यू Y की वैल्यू माइनस में है, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, और एक प्लस में जाएगा एक माइनस में, यानी जो भी ऊपर जाएगा वो प्लस, नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है वो माइनस में आएगा। वो साइन एटला एक बार देख लेना, वो मैं दिखाने वाला नहीं हूँ, वो एक बार आप देख लेना, अगर कुछ गलत रहेगा तो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, टेंशन मत लेना, कितने को समझ में आया वो मेरे को भी पता चल जाएगा, इसीलिए गलत रहेगा तो टेंशन मत लेना, लेकिन अपलोड जरूर करना, यू हैव टू अपलोड दिस असाइनमेंट ऑन गूगल क्लासरूम। ओके ओके, अगर अभी भी किसी को डाउट है तो मेरे को मैसेज व्हाट्सएप पे कर देना, सर 20 मिनट्स का टाइम दिया है सर ने एक्चुअली, तो मैं 2 बजे वापस आ जाऊंगा। किसी को डाउट रहेगा तो मैसेज आएगा तो ही मैं ऑनलाइन रहूंगा, वरना नहीं होगा। ओके, अगर कोई भी एब्सेंट, हाँ सबमिट 3 दिन में, विद इन 3 days। ओके, विद इन 3 days यू हैव टू सबमिट। ओके, ओके, मैं लिंक भेज देता हूँ, एक पेज सेट कर देता हूँ, एक रफ डायग्राम ड्रॉ के अपलोड करके मैं भेज देता हूँ। ओके, और ये प्रेजेंटेशन भी अपलोड कर दूंगा अभी क्लासरूम में। ओके चलो, बाय।